allow me to speak. Sir, I have two guests who haven't spoken. Let me take their view. I'll come back to you if I can. Advocate Ehtesham Hashmi is joining us. You're an advocate yourself, Ehtesham. What do you make of the arguments that have been presented in court and the fact that the Supreme Court has indeed decided to look into it by a 3-judge bench? Is it not time to review this act for fairness to everybody? Thank you so much for inviting me on this debate. And I just want to say that as a lawyer, that why Place of Worship Act was enacted. I think no one, and neither young lawyer, my friend Vishnu Shankar Jain and Bansal ji, has read the Place of Worship Act and Constitution of India in correct perspective. I can cite 1,000 examples where Mughal emperors have donated fortune to temples. And one thing which I would like to request with all the viewers and all the panelists and all Indians, so please don't equate Indian Muslims with Mughals. What Mughals have done, it's a part of history. What we have to do is about future of our nation. I think we should discuss about economy, education, empowerment, women empowerment, and for the development of society. And let me make my point. This act is enacted with the sole intention to prevent disharmony in the society. I am just requesting that we should not destroy the harmony of the society, and the statutory object of the act is to prevent disturbance of public order and maintenance of peace and tranquility and strengthen the basic feature of secularism. मैं आप ही की बात का थोड़ा आगे बता रही हूँ, आपको मैं मौका दूंगी। One last point. एक सेकंड, आपने बोला आज के जो मुसलमान हैं उनको मुगल से मत इक्वेट कीजिए, आपने बिल्कुल सही बात करी, लेकिन आप ये भी कह रहे हैं कि अगर ये एक्ट चला जाएगा तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो जाएगी, या इन साइट्स को रिक्लेम किया जाएगा तो लॉ एंड ऑर्डर कम्युनल डिसहार्मनी हो जाएगी। ये दोनों बातें एक साथ क्यों? आज के मुसलमान को क्यों फर्क पड़ना चाहिए? जो बाबर ने किया, जो औरंगजेब ने किया, उसको क्यों नहीं ठीक कर सकते? See, we are not connected to Mughals in any way. But yes, the religious structure and mosques which are situated in India, Indian Muslims are quite connected to those structures. Even Babar's structure after demolishing Kashi. Or let me, Shivani, please allow me to make my point. Actually, I am sitting since last 35 minutes. I am just requesting 2 minutes. एहतेशाम हाशमी जी, आप कंप्लीट करिए, फिर विष्णु जैन। land to ancient. Thank you so much, Shivani. Thank you so much. So kind of you. Aurangzeb offered lavish grant and land to ancient Someshwar temple, and Aurangzeb donated land for more than 400 temples. So may I ask my learned friends who are appearing for BJP, can they return those grants? Can they return those grants back to Mughals and to Muslims if they are equating Indian Muslims with Mughals and demolishing the Muslims? किसको रिटर्न करें? एक सेकंड, विष्णु जी, रिटर्न किसको करें? रिटर्न किसको करें बताइए? To whom they ever want? हाँ, तो मुगलों के जो डिसेंडेंट्स हैं, हाशमी जी, मुगलों के जो डिसेंडेंट्स हैं, वो अगर कोर्ट में जाके बोलते हैं कि हमें ये पैसा वापस कर दीजिए, तो कोर्ट में जा सकते हैं। अगर मुगल से इतनी प्रॉब्लम है इनको, तो जो मुगलों से इन्होंने भीख ली है उसको वापस कर दें फिर। क्यों हाथ में रखे हुए हैं? हाशमी जी, अब आप भीख पे मत आइए, मुगल से कोई प्यार नहीं। अब भीख किसी ने नहीं ली, अब आप भीख पे मत आइए, अब आप अपना थोड़ा सा संभाल लीजिए। इंडियन मुस्लिम आप मजाक कर रहे हैं कि भारत में रहने वाले हिंदुओं ने फॉरेनर से भीख ली है? अगर ये व्यू रखेंगे तो फिर तो लड़ाई होगी। ये जो लॉयर्स हैं ना, जो बीजेपी के पपेट्स हैं, इनको कहने की जरूरत है कि इनको थोड़ा सा संविधान के दायरे में रहकर काम करना चाहिए। बीजेपी और अपने टोन एंड टेलर पे थोड़ा कंट्रोल कीजिए। विष्णु जैन, मैं एक बात कहना चाहता हूं, यहाँ पे एहतेशाम भाई ने कहा, शिवानी जी, एहतेशाम आर्ग्यूड दैट दे हैव नो सर एक मिनट, देखिए मैं आपके लेवल पे नहीं जाना चाहता हूं। आई जस्ट आर्ग्यू विद द एंकर, आई टेल माय सबमिशंस टू द एंकर, आई डोंट वांट टू। आप आ भी नहीं सकते मेरे लेवल पे, आप आ भी नहीं सकते मेरे लेवल पे, भी बहुत सीखना है आपको। ठीक है, अरे ठीक है सर, आप अपने जो मास्टर्स हैं उनके लिए काम करो, उनके पपेट्स बन के काम करो। आप विष्णु शंकर जैन, अरे उनके कोई भी मास्टर है, उनका अधिकार है देश में अपना काम करना, आप कौन होते हैं डिक्टेट करने वाले? दिस काइंड ऑफ रिस्पेक्ट।
आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट दिस काइंड ऑफ डिसरिस्पेक्ट। डिसरिस्पेक्ट तो आप सबकी चेले हो कर गए रहे बीजेपी के हैं, और नेताओं के। यहाँ पे तमीज से बात चौड़े करो। हो रहे हैं कि आपकी डिसरिस्पेक्ट हो रही है। तमीज से बात करने की जरूरत आपसे है सब शिवानी, तमीज दिस से इज नॉट बात द कर वे रहे टू हैं। कंडक्ट द डिबेट। आप शिवानी, आई विष्णु एम जैन एक्सट्रीमली को सॉरी, पपेट और ये और बोल चल रहे हैं। आप बोल रहे हैं हिंदुओं ने भीख ली है मुगलों से, और आप चौड़े हो रहे हैं और कह रहे हैं कि आपकी डिसरिस्पेक्ट हो रही है। हाँ मैं बोलूंगा, हाँ मैं बोलूंगा, क्यों हाँ, भीख तो लिए ठीक है ना, आपको बोलने दिया। अब आप ये मत बोलिए कि डिसरिस्पेक्ट नहीं टॉलरेट करेंगे। What you can give, learn to take it also. Anyways, मुसलमान को टारगेट करोगे? शर्म नहीं आनी नहीं, चाहिए इस मुसलमानों बात को का। किसी ने नहीं टारगेट किया। आप प्लीज अपने थोड़ी जबान पे थोड़ा सा कंट्रोल रखिए। विष्णु जैन, बिल्कुल टारगेट कर रहे हैं विष्णु आप जैन लोग। 2 मिनट्स बिल्कुल करा तो टारगेट गो कर टू रहे हैं। मौलाना मुगल से मसूद भीख क्यों also. ली फिर आपने मंदिर Only बनाने विष्णु के लिए? जैन नहीं please. लेते, अपने पैसे से मंदिर बनाते। भीख किसी ने नहीं ली भाई साहब, हिस्ट्री पढ़ लीजिए। भीख किसी ने नहीं ली। शिवानी, जिनकी जगह पे शिवानी, मुगलों ने आके औरंगजेब ने राज हजारों किया करोड़ और रुपए जिनको मंदिरों को दबाने दिया की है, कोशिश उसका करी क्या वो करोगे? भिखारी होंगे। हिंदू भिखारी नहीं थे उस समय के। जो इन्वेडर हैं उनको आप शिवानी ये जी, मत हिंदू दिखाइए वो कि थे। बहुत उन्होंने वरदान दे दिया। विष्णु जैन 1 मिनट प्लीज। शिवानी जी, एहतशाम भाई ने कहा कि इनका मुगलों से कोई रिलेशन नहीं है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ और पूछना चाहता हूँ बड़ी संजीदगी से कि जब काशी की पूरा केस चल रहा था तो आपको पता है मुस्लिम पक्ष ने क्या डॉक्यूमेंट दिखाए कोर्ट में? मस्जिद आलमगिरी का डॉक्यूमेंट दिखाया और कहा इसको हमारे बादशाह औरंगजेब ने बनाया, इसलिए ये मस्जिद हमको दी जाए और ये औरंगजेब ने वफ किया है। तो अगर मुगलों से कोई रिलेशन नहीं था तो औरंगजेब ने जो वफ किया है, सो कॉल्ड वफ किया है, उसको हमने डिस्प्यूट किया, सो कॉल्ड वफ किया, तो उससे अपना टाइटल क्यों डिराइव किया? पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि हिंदुओं ने मुगलों से भीख ली है। मैं पहली बात इस बात का बहुत स्ट्रांगली कंडेम करता हूं। ये बहुत डेरोगेटरी वर्ड्स है इस देश के बहुसंख्यक समाज के अगेंस्ट। और साथ ही साथ और मैं नहीं, ये कहना चाहता हूं कि जजिया हमने जैन, इनको दिया था, जिसकी अपना जमीन धर्म, थी, ये भारत अपना जिसका धर्म था, हमने नहीं छोड़ा था उसको- शिवानी जी। नहीं नहीं, जिसकी जमीन थी, जो जिसका देश था, उस पे आपने अटैक करके, बाहर से आके अटैक करके उस जमीन को हथियाया। फिर वही पैसा अगर आपने दे भी दिया 4-5 मंदिरों को, तो वो मंदिर भीख हो तोड़े। जाती है क्या? और हमारे मंदिर तोड़े, हमारे साथ यहाँ पे जजिया लगाया, दीवालों में चुना गया, आरे से काटा गया, और आज उन सबको भूल के जब हम अपने मंदिरों के रेस्टोर की बात कर रहे हैं तो एहतशाम जी कहते हैं कि हमने भीख दी, मुगलों ने भीख दी, और दो मुंह ही बात करते हैं, कहते हैं कि हमारा मुगलों से कोई रिलेशन नहीं है। तो पॉइंट यही है कि आज के देश का जो इंडियन मुसलमान है उनका अपना सारा क्लेम जो मुगलों ने यहाँ पे आक्रांताएं की हैं, जो बर्बरता की है, उन्हीं से डिराइव कर रहे हैं। और जब उसका उजागर कर रहे हैं तो कह रहे नहीं नहीं, उनसे हमारा कोई क्लेम नहीं है, Okay, उनसे हमारा fair कोई enough. रिलेशन नहीं है, और सारे रिलेशन उन्हीं से निकाल रहे हैं, सारे रिलेशन नहीं, उन्हीं से ये निकाल तो- रहे हैं। आप मुगलों को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। आपने आज मैं एक बात कहना चाहता हूं, एहतशाम भाई मुझे 50 बातें बोलते, मुझे कोई बुरा नहीं लगता, पर उन्होंने जो ये शब्द प्रयोग किया है नहीं, गलत कि किया है। हिंदुओं ने मुगलों से भीख ली, मैं इस शब्द को बहुत डेरोगेटरी मानता हूं, पूरे बहुसंख्यक समाज और के लिए यही बहुत view है। डेरोगेटरी मानता हूं। नहीं, और मैं- यही मैं दिक्कत है। शिवानी जी मैं एक बात कह रहा हूं, मैं अपने आप को कंट्रोल कर रहा हूं। आज मैं कोई ऐसी बात नहीं बोल रहा हूं कि इस देश में लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो, बस मैं अपनी बात को कंट्रोल कर रहा हूं, पर मैं कह रहा हूं बहुत डेरोगेटरी बात की इन्होंने। बिल्कुल करिए, ये बात एक्सेप्टेबल नहीं है, और यही दिक्कत फैलाता है मौलाना मसूद जी। यही जो एटीट्यूड है ना कि हमने तो भीख में दे दिया था। आप बताइए, भारत जैसे देश में क्या ये एक्सेप्टेबल होगा? क्या हिस्ट्री नहीं पता हमें कि किसने भीख ली, किसने यहां से कमाया और बाहर भेजा? शिवानी